Okay. Hello everyone. This is Assistant Professor Gayatri Narayan Naik. So basically in my today's lecture, I'm going to cover the detailed introduction on working capital. Working capital plays an important role in any of the organizations. When I say organizations, I may categorize the organization into small, medium and large organizations. ठीक है? So कोई भी organization हो, वो छोटी, medium या बड़ी हो, working capital plays a very important role because working capital is a lifeblood of any organization and it is required in order to meet our day-to-day expenses. Okay? So over here, the first point, I'll start with the first point, that is working capital, or also known as gross working capital, which also refers to as aggregate of current assets. Second, current assets are those assets which can be easily converted into cash within an accounting year. Third, gross working capital is also equals to current assets. So basically working capitals deal with current asset. Working capital को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, gross working capital and net working capital. When I say gross working capital, that means it is purely focusing only on the current asset. And what do you mean by current asset? Those assets which can be easily converted into cash within a period of 1 year. ठीक है, एक साल के अंदर जो भी हमारे एसेट्स है, अगर वो कन्वर्ट हो जाते हैं कैश में, उसको हम करंट एसेट बोलते हैं. ठीक है, उसके बाद जो नहीं होते हैं उसको ऑब्वियसली दो ही टाइप के एसेट्स होते हैं जो डिवाइड करते हैं हम बैलेंस शीट के एसेट साइड में, फिक्स्ड एसेट एंड करंट एसेट. तो करंट एसेट आर दोस एसेट व्हिच कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर. तो यहाँ पे नेट वर्किंग कैपिटल किसे बोलेंगे? नेट वर्किंग कैपिटल इज द डिस्टिंक्ट, और वी कैन से इट इज a kind of subtraction between a current asset and a current liability. Current asset and current liability का जो difference होता है उसे हम net working capital बोलते हैं. तो यहाँ पे gross working capital का दूसरा नाम होता है current asset. Net working capital का क्या आ जाता है? That is current asset minus current liability. Over here, next point जो हम देखने जा रहे हैं, that is kind of working capital. Kind मतलब types of working capital. Over here देखो, जो first type है वो fixed है. Fixed का दूसरा नाम rigid है. रिजिड, रेगुलर और परमानेंट वर्किंग कैपिटल. सेकेंड जो है वो हमारा वेरिएबल है, वहां फिक्स्ड है तो यहाँ पे वेरिएबल है. यहाँ पे रिजिड है एंड यहाँ पे क्या है? फ्लेक्सिबल है. वहां पे रेगुलर है और यहाँ पे क्या है? सीजनल है एंड टेम्पररी हम उसे बोल सकते हैं. तो ओवर हियर let us start with the first, that is fixed, rigid, regular or permanent working capital state. Business concern require minimum amount of current asset at all time to carry out the activity effectively and efficiently. So over here, business concern required. Children, अगर आपको कोई भी business run करना है, जैसे मैंने बोला है, जैसे हमें अपने body को run करना है, तो what is required? We need a food and water in order to survive. Similarly here also, if you want to run your business, what is required, children? Working capital is required. And working capital वो किससे connected है? That is current assets. And current asset is required to carry out our activity in more efficient and effectively manner. तो अगर हमारे पास current asset बहुत अच्छे वे में है, बहुत अच्छी कंडीशन में है, वहां पे कमी नहीं है, that means somehow our business is running in more efficiently and more effectively manner. Second point over here, compulsory for business concern to keep some material as stock, some in shape of WIP and finished good form. When I say current asset, it means current asset, the asset which can be easily converted into cash within a period of 1 year. तो यहाँ पे say for example उसमें current asset में से एक item मैं ले देती हूँ stock. जब हम लोग रॉ मटेरियल परचेज करते हैं चिल्ड्रन, तो हमें उसको रखना पड़ता है. रॉ मटेरियल के बाद हम लोग उसको कौन से स्टेज में डालते हैं? WIP स्टेज में डालते हैं. WIP के बाद कौन से स्टेज में डालते हैं? फिनिश गुड के स्टेज में डालते हैं. तो यहाँ पे कंपल्सरी फॉर बिजनेस concern to keep some material. So it is compulsory for every business, those especially those who are trading in manufacturing and trading activity, definitely they has to keep their material either in the form of a stock or some in the shape of a WIP and finished good form. ठीक है, यहाँ पे थर्ड पॉइंट क्या बोला? रिक्वायर मिनिमम अमाउंट ऑफ कैश फॉर डे टू डे रिक्वायरमेंट. एग्जैक्टली, अगर ये सारी एक्टिविटी हमें कंडक्ट करानी है, दैट इज रॉ मटेरियल परचेज करना है, स्टोर में रखना है, मतलब WIP स्टेज पे या फिर उसको फिनिश गुड के स्टेज में, तो हमें ये सारी एक्टिविटी कंडक्ट करने के लिए हमें मिनिमम अमाउंट चाहिए ही होता है. तो इसीलिए हमने सेकंड पॉइंट में क्या बोला है? रिक्वायर मिनिमम अमाउंट ऑफ कैश फॉर आवर डे टू डे रिक्वायरमेंट. थर्ड क्या बोला है? विदाउट सच अमाउंट एक्टिविटी कैन नॉट बी कैरिड आउट. ठीक है, तो से फॉर एग्जांपल अगर आपको यहाँ से CST जाना है, ठीक है, आपको यहाँ से CST जाना है, तो आपको क्या लगेगा?
आपको क्या लगा, इफ अगर आप अपने प्राइवेट व्हीकल से जा रहे हो तो आपको पेट्रोल का एक्सपेंसेस लगेगा कि नहीं लगेगा, तो वो मिनिमम एक्सपेंसेस आपको बेयर करना पड़ेगा, आपको थाने से लेके सीएसटी तक जाना है। तो सिमिलरली हियर आल्सो रिक्वायर मिनिमम अमाउंट ऑफ कैश फॉर आवर डे टू डे रिक्वायरमेंट। ओवर हियर fourth point is without such amount activity cannot be carried out smoothly। अब मैं आपको बोलूंगी कि आपको थाने से सीएसटी जाना है विदाउट पेट्रोल, ठीक है, विदाउट एनी काइंड ऑफ हैविंग मनी इन योर पॉकेट। आई वांट यू आर ट्रैवलिंग, यू आर गोइंग टू ट्रैवल फ्रॉम थाने टू सीएसटी। कैसे पॉसिबल होगा? पॉसिबल हो जाएगा, आप चल के चले जाओगे, बट आपका जो एक्टिविटी है क्या वो स्मूथर वे में जाएगा क्या? नहीं। सिमिलरली हियर आल्सो what is required, working capital is required so that your activity can be worked in a much smoother manner। Fifth point, therefore some amount of working capital is necessary to outlay its fixed asset effectively। तो कुछ working capital हमें साइड में रखने पड़ेंगे so that our work can be done in a more effectively manner। We'll go with the next one, that is variable, seasonal, temporary and flexible working capital। So over here, temporary working capital is that amount of current asset which is not permanent, fluctuating from time to time depending upon the company requirement and is generally financed out of the short term fund। Temporary working capital कैसे होगा? अब मैं डिवाइड कर देती हूँ। Say for example, if my business is running at a peak point, ठीक है, in that case demand लोगों से आ गया है, if people are demanding more, in that case we need to supply them। For that all of sudden demand बढ़ने से हमारा प्रोडक्शन भी हमको बढ़ाना पड़ेगा, एंड ऑल ऑफ सडन जब हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे वी नीड मोर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। समझ में आया? सेकंड, ये मैंने कब की बात की, दैट इज ड्यूरिंग अ पीक टाइम। सेकंड मैंने क्या बोला है, ड्यूरिंग डिप्रेशन। जब डिप्रेशन के टाइम पे आपका जो प्रोडक्ट का डिमांड है वो पूरी तरीके से डिक्लाइन हो गया, इन दैट केस अभी उसको ऊपर उठाने के लिए आपको फिर से वर्किंग कैपिटल में एक्सपेंसेस करना पड़ेगा, विच इज अगेन अ टेम्पररी नेचर, क्योंकि पीक कभी भी आ सकता है, डिप्रेशन कभी भी आ सकता है। तो ओवर हियर टेम्पररी वर्किंग कैपिटल इज दैट अमाउंट ऑफ करंट एसेट, वो उस अमाउंट किसका है, करंट एसेट का, विच इज नॉट परमानेंट। ये परमानेंट नहीं है, हमेशा पीक रहेगा, हमेशा डिप्रेशन रहेगा, ऐसा नहीं है, which is not permanent, fluctuating from time to time। और वो कैसे हो रहा है चिल्ड्रन, वो फ्लक्चुएट हो रहा है, इसीलिए तो उसको वेरिएबल, सीजनल, टेम्पररी, फ्लेक्सिबल वर्किंग कैपिटल बोला गया है एंड इज जनरली फिनांस्ड आउट ऑफ द शॉर्ट टर्म फंड। और बेसिकली ये सारे जो है वेरिएबल, सीजनल जो है वो कहाँ से फिनांस किया जाता है, शॉर्ट टर्म फंड से। वेरेज जो फिक्स्ड, रिजिड, रेगुलर और परमानेंट वर्किंग कैपिटल, मतलब आपको अपना प्रोडक्शन प्रोसेस चालू करना है तो आपको पता है कि ये पूरे साल भर में मेरे को इतना एक्सपेंसेस लगता है, तो वो आ जाएगा फिक्स्ड में। वेरिएबल में मतलब क्या है, ऑल ऑफ सडन पीक आ गया, ऑल ऑफ सडन डिप्रेशन आ गया, तो उसके चलते जो टेम्पररी सिचुएशन क्योस क्रिएट हुआ है चिल्ड्रन, उसको मीट करने के लिए हम लोग कहाँ से फंड लेंगे, दैट इज शॉर्ट टर्म फंड से लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन, ड्यू टू सीजनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडस्ट्री, एज आई स्टेटेड ड्यूरिंग पीक पॉइंट एंड ड्यूरिंग डिप्रेशन। तो ये होता है सीजनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडस्ट्री। अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल कोविड-19 में कौन सा इंडस्ट्री एकदम बूम पे चल रहा है, दैट इज फार्मेसी। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे ड्यू टू सीजनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडस्ट्री हम लोग को मोर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड, आल्सो कॉल्ड एज सीजनल वर्किंग कैपिटल। एंड इसके चलते इनको दूसरा नाम क्या दिया गया है, सीजनल वर्किंग कैपिटल। ठीक है, नेक्स्ट सी विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, द डायग्राम इज टू ब्यूटीफुल। तो ये डायग्राम से हम पता कर पाएंगे। देखो डिफरेंस बिटवीन परमानेंट एंड टेम्पररी वर्किंग कैपिटल में, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे देखो टाइम दिया है, ठीक है, एंड वाई एक्सिस पे क्या दिया है, अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल दिया है। अगर आप ऊपर की तरफ देखेंगे, परमानेंट वर्किंग कैपिटल इज इन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मतलब आपको पता है कि आपका हमेशा ये एक्सपेंस होने ही वाला है। आप से फॉर एग्जांपल 100 टन्स ऑफ गुड्स प्रोड्यूस करोगे, तो वो 100 टन्स ऑफ गुड प्रोड्यूस करने के लिए आपका ये एक्सपेंसेस कंपल्सरी आपको बेयर करना है। तो आपको पता है कि इतना अमाउंट हमें साइड में रखना है। आई हैव टू गिव सर्टेन अमाउंट as in the form of a like in order to run with my business I need to keep certain amount aside, so that is known as permanent working capital. But when I say variable working capital, that means it will going to fluctuate. If you can see, the fluctuation is like this because sometime it is at peak point, sometime it is at depression point. So over here you can easily identify permanent working capital is in a straight line, ठीक है, which is parallel to x-axis, whereas variable working capital it is in a moving, वो dancing phase में है, because sometime it is going up, sometime it is coming down. So over here we can easily identify जो variable है, it is
very much kind of seasonal. It is very much flexible and it moves upward and downwards. See, adequacy and inadequacies of working capital. Over here, working capital of a business should be commensurate with its, just a minute. With its needs. Working capital of a business should be commensurate with its needs. ठीक है? तो working capital कैसे चाहिए? कि जैसे जैसे मेरी business होगी, जैसे जैसे उसकी need होगी, I need to fulfill that working capital वाला condition. So over here, too high or too low working capital of a business or too extreme of working capital are equally dangerous to the existence of business enterprises itself. आप जिस दिन बहुत ज्यादा खाना खा लेते हो, आप बहुत ज्यादा मतलब टाइडीनेस फील करते हो. जिस दिन आप कम खाना खाते हो, आपको बहुत ज्यादा भूख लगती है. दोनों ही सिचुएशन बहुत बुरी होती है. तो सिमिलरली हियर आल्सो आपको बैलेंस करना है. बहुत ज्यादा वर्किंग कैपिटल में अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया तो भी डेंजरस है बिजनेस को, बहुत कम कर दिया तो भी डेंजरस है बिजनेस को. तो हमें क्या करना चाहिए? सो लेट्स सी अब डेंजरस क्यों है. With the given example that is high working capital. ठीक है, अगर मैंने वर्किंग कैपिटल में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया, बहुत ज्यादा पैसे मैंने वर्किंग कैपिटल में डाल दिया, तो क्या होगा? यू कैन सी हमारा जो लिक्विडिटी पोजीशन है वो बढ़ जाएगा, बिकॉज हमने क्या किया है चिल्ड्रन, वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट किया, तो ऑब्वियसली हमारा लिक्विडिटी बढ़ गया. ठीक है, कैश बढ़ गया, तो लिक्विडिटी इज पोजीशन एट हाई, whereas our profitability is declining because हमारा जो हमने जो पैसे डाल दिए हैं वो आइडली है, एंड अगर वो इन्वेस्ट नहीं होगा तो प्रॉफिट कहाँ से जनरेट करेगा? समझ में? तो यहाँ पे हाई वर्किंग कैपिटल में रिजल्ट इनटू इंक्रीज इन योर लिक्विडिटी पोजीशन, whereas it may decrease with your profitability position and vice versa. Over here, अगर आपका लो वर्किंग कैपिटल होगा, क्या होगा? लो वर्किंग कैपिटल में आपने इन्वेस्ट किया, मतलब आपके पास पैसा है क्या? नहीं, मतलब आपका लिक्विडिटी पोजीशन डिक्लाइन हो गया. अगर आपका लिक्विडिटी पोजीशन डिक्लाइन हो गया, दैट मीन्स आप अपने पैसे को आइडल नहीं रख रहे, यू आर इन्वेस्टिंग, एंड दैट इन्वेस्टमेंट इज जनरेटिंग अ रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ अ प्रॉफिटेबिलिटी. ओके, नेक्स्ट, डेंजर ऑफ टू हाई अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल. देखो वहां पे हमने डिवाइड किया था कि टू हाई अमाउंट ऑफ ज्यादा अगर हम वर्किंग कैपिटल रखते हैं तो व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस? ओवर हियर इट रिजल्ट इनटू अननेसेसरी accumulations of inventories. So unnecessary we are accumulating with the unnecessary accumulations of inventories. बहुत सारे इन्वेंट्रीज लाते हैं, एंड जब हम बहुत सारी इन्वेंट्रीज लाते हैं, देयर इज अ चांसेस ऑफ मिस हैंडलिंग. क्या कर सकते हैं? देयर इज अ चांसेस ऑफ मिस हैंडलिंग, या फिर वेस्टेज हो सकता है, या फिर चोरी हो सकता है चिल्ड्रन, एंड लॉसेस में इंक्रीजेस. सो ओवर हियर दिस कैन बी अ ड्रास्टिक सिचुएशन, एंड बहुत chaos create हो सकता है. that is it result into unnecessary accumulations of inventory. after all ये cost है, मतलब इस सारे चीजों से cost हमारा बढ़ जाएगा. idle fund which earn no profit for the business, as I stated. See, you need to invest your money. When you will going to invest your money, that investment will going to generate a profit to your business. So over here, अगर मैंने बहुत ज्यादा पैसा working capital में डाल दिया, that means that fund has remained idle, and due to idleness of the fund which earn no profit for the business. So over here, children, देखो, these are the disadvantage अगर आप ज्यादा working capital मतलब invest working capital में invest करोगे. Next, third, defective credit policy resulting higher incidence of bad debts and adverse affect profitability. So over here, देखो, defective credit policy in higher incidence of bad debt. Say for example, मैंने customers को goods sell out कर दिया, कस्टमर्स को गुड सेल आउट कर दिया, उनको क्रेडिट पीरियड बहुत ज्यादा दे दिया. ठीक है, से फॉर एग्जांपल अगर इन द मंथ ऑफ जुलाई 1 जुलाई 2020 को मैंने बेचा, एंड आई हैव गिवन देम अ क्रेडिट लिमिट ऑफ 1 ईयर का दे दिया. और यहाँ पे जो मेरे क्रेडिटर्स है, मतलब मैं जिससे परचेस कर रही हूँ, उनको मुझे पे करना पड़ रहा है. ठीक है, इन दैट केस मतलब मुझे पैसा कब मिलेगा? 1 साल के बाद. देना कब है मुझे क्रेडिटर्स को? 2 महीने के अंदर उसको देना है. तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या बोला? डिफेक्टिव क्रेडिट पॉलिसी. ये जो क्रेडिट पॉलिसी है ना, हम लोग जो उधार पे दे रहे हैं, कैन रिजल्ट इनटू हायर इंसिडेंस ऑफ बैड डेब्ट्स. और इससे क्या हो सकता है? बिजनेस को बैड डेब्ट्स हो सकता है, एंड बैड डेब्ट्स के चलते अगर बैड डेब्ट्स होगा था, इट विल डेफिनेटली
affect your profitability, वो आपके profitability को hit करेगा. And lastly, it result into overall inefficiency. और हमें क्या देखने को मिलेगा कि अगर हम ज्यादा वर्किंग कैपिटल कहीं पे भी इन्वेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली इससे क्या होगा, ओवरऑल इनएफिशिएंसी होगा. ठीक है, तो इट इज ऑलवेज एडवाइज दैट आपको ज्यादा कहीं पे ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है, या फिर ज्यादा ब्लॉकिंग ऑफ फंड नहीं करना है, या फिर कम भी नहीं करना है. देयर शुड बी अ प्रॉपर बैलेंस टू इट. नेक्स्ट, डेंजर ऑफ इनएडिक्वेट और लो अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल. तो जो फर्स्ट पॉइंट था वो हमारा क्या था, देखो, डेंजर ऑफ हाई अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, और यहाँ पे क्या बोला है, डेंजर ऑफ इनएडिक्वेट और लो अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल. यहाँ पे मैंने वर्किंग कैपिटल काफी कम डाल दिया. तो यहाँ पे देखो क्या बोला है, डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट ऑपरेटिंग प्लान एंड अचीव द फर्म प्रॉफिट टारगेट. से फॉर एग्जाम्पल चिल्ड्रन, से फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई चीज अचीव करना है, for that minimum आपको वो expenses bear करना पड़ेगा. Say for example, if you want to purchase, if you like the sum of the book, say for example, और वो book की cost है 300 and आपके पास है सिर्फ 200, whether you are in a position to purchase that book? Definitely no. तो यहाँ पे जब आप purchase ही नहीं कर पाओगे, आप वो पढ़ ही नहीं पाओगे और एग्जाम ही नहीं दे पाओगे, तो डेफिनेटली आपके टारगेट अचीव होंगे क्या, नहीं होंगे. तो सिमिलरली हियर आल्सो, ड्यू टू इनएडिक्वेसी और लो अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल से क्या हो जाएगा, इट विल बी डिफिकल्ट टू द कंपनी दैट टू इम्प्लीमेंट ऑपरेटिंग प्लान. जो ऑपरेटिंग प्लान हमने सोचा है एंड जो हमने सोचा है वो कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट नहीं होगा. अगर वो एग्जीक्यूट नहीं होगा तो जो हमारा प्रॉफिट टारगेट है, जो हमने सोचा है कि इतना % हमारा प्रॉफिट आना चाहिए, क्या वो पॉसिबल होगा, क्या नहीं होगा. तो इससे क्या होगा, जब हमारा ऑपरेटिंग प्लान सक्सेसफुल नहीं होगा ड्यू टू लो अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, हमारा प्रॉफिट टारगेट हम अचीव नहीं कर पाएंगे. इट विल स्टैग्नेट ग्रोथ. हमारा जो ग्रोथ है इट विल गोइंग टू स्टैग्नेट, इट विल गोइंग टू स्टॉप. नेक्स्ट, नॉट इन अ पोजिशन टू मीट इज डे टू डे करेंट ऑब्लिगेशन. मैंने कहा ना आपसे कि अगर वर्किंग कैपिटल हमारा एडुकेट नहीं होगा तो हमारा डे टू डे ऑब्लिगेशन हम कैसे फुलफिल करेंगे चिल्ड्रन. सो हियर what is required, we need a working capital which is essential for our day to day requirement, और वही हमें नहीं मिल रहा है, which will result into operational inefficiency. इससे क्या हो जाएगा चिल्ड्रन, हमारा जो ऑपरेशनल है, ऑपरेशनल वर्क है, there will be a problem with our operational work and definitely it will result to inefficiency. Then उससे क्या होगा, अगर ऑपरेशनल इनएफिशिएंसी होगा तो दैट विल डायरेक्टली अफेक्ट आवर इन्वेस्टमेंट, हमारे इन्वेस्टमेंट को अफेक्ट होगा. तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फॉल ड्यू टू अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट. वी आर नॉट यूटिलाइजिंग आवर फिक्स्ड एसेट इन एन एफिशिएंट मैनर. उससे क्या होगा, हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ठीक तरीके से हमें रिटर्न प्रोवाइड नहीं करेगा, वो फॉल हो जाएगा, वो गिर जाएगा. And then credit facilities in the market will be lost due to faulty working capital. तो यहाँ पे if I want to borrow a certain amount from the bank, from the creditors से अगर मुझे purchase करना है, so who will going to finance us? Nobody will going to finance us. Nobody will going to provide a raw material to us because we will be lost in the market. And the reason behind losing into the market is because of the faulty working capital. And lastly, the reputations and goodwill of the firms will also be impaired considerably. तो यहाँ पे reputations and जो goodwill of the firm है वो भी पूरी तरीके से आपका damage हो सकता है. So it is very much essential कि आपको ज्यादा ही वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट नहीं करना है, ना ही कम भी करना है. आपको क्या करना है, मॉडरेट लेवल पे, जितना चाहिए हमारे बिजनेस को उतने लेवल पे करना है. नेक्स्ट, we'll start with the next part, that is working capital cycle. Working capital cycle, देखिए working capital cycle का दूसरा नाम है operating cycle of a business. इसको दूसरा नाम से भी जाना जाता है. तो यहाँ पे first we'll start with the purchase. तो देखो परचेज लिखा है, परचेज के बाद क्या है, हमने क्या परचेज किया, रॉ मटेरियल परचेज किया. जब हम रॉ मटेरियल परचेज करते हैं उसको स्टोर में डालते हैं एंड फिर उसको प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए हम डालते हैं. प्रोडक्शन प्रोसेस रॉ मटेरियल से क्या बनता है, WIP, दैट इज वर्क इन प्रोग्रेस. वर्क इन प्रोग्रेस स्टिल वो प्रोडक्शन प्रोसेस से निकलता है एंड देन वो कहाँ पे जाता है, फिनिश गुड पे जाता है. एंड फिनिश गुड हम लोग क्या करते हैं, फाइनली सेल करते हैं. क्या करते हैं, सेल करते हैं. Either children, देखो डेप्थ कलेक्शंस एंड क्रेडिट पेमेंट. डेप्थ कलेक्शंस एंड क्रेडिट पेमेंट यहाँ पे क्या करते हैं, हम डेटा से पैसे कलेक्ट करते हैं सेल करके
एंड क्रेडिट पेमेंट। क्रेडिट पेमेंट मतलब जो क्रेडिटर से हम लोग ने परचेज किया है ना, उसको भी तो पैसे देने हैं ना सप्लायर को, तो यहाँ पे क्या करेंगे, डेब्ट कलेक्शन स्लैश क्रेडिट पेमेंट। फिर रियलाइजेशन ऑफ इनकम, और डेटर से जो हमें इनकम मिलेगा वो कैश वहां पे आ गया। फिर वही कैश से हम परचेज करेंगे रॉ मटेरियल, वही रॉ मटेरियल से वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस से फिनिश गुड, फिनिश गुड से डेब्ट कलेक्शन एंड क्रेडिट पेमेंट। तो द साइकिल्स कीप ऑन रिवॉल्विंग, वो कंटिन्यूसली रिवॉल्व होता रहता है, इसीलिए उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ अ बिजनेस। व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेटिंग? ऑपरेटिंग मतलब कि जो डेली होता है, डेली बेसिस पे होता है, विच इज एन ऑपरेशन ऑनगोइंग, सो हियर इट इज आल्सो नोन एज ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ अ बिजनेस। सी हियर वर्किंग कैपिटल साइकिल इज ऑल्सो नोन एज ऑपरेटिंग साइकिल, जो मैंने आपको बता दिया है। बिजनेस, कौन कौन से बिजनेस हो सकते हैं, फाइनेंशियल नेचर्स के हो सकते हैं, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। The time required to take from investment of cash in some asset and conversions of again into the cash term is known as operating of working capital cycle। जैसे मैंने आपको बोला है ना कि मैं सबसे पहले क्या करूंगी, परचेस करूंगी रॉ मटेरियल will get convert into WIP, finish good, again collection from data, and collection from data will generate a cash, and again the cycle will be moving in a circular motion. So over here the time required to take, ये जो टाइम लगता है परचेज करने से और पूरा बनाने से पैसे कलेक्ट होने तक, ये पूरे टाइम जो हमें लगता है, टाइम ये फॉर्मेशन है, टाइम फ्रेमिंग है, उसको हम बोलेंगे ऑपरेटिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल साइकिल। क्या बोलेंगे? ऑपरेटिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल साइकिल। साइकिल refers to the time period, as I have stated on the above point, that is cycle refers to the time period। कितना टाइम लगता है हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस से लेके परचेसिंग से लेके कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर से लेने तक जो भी टाइम लगता है उसे हम क्या बोलते हैं, साइकिल। over here when we are talking about the trading concern, जब हम ट्रेडिंग कंसर्न की बात करते हैं, the operating cycles में भी उनका ऑपरेटिंग साइकिल अलग होगा, that is कैश से स्टॉक से डेटा एंड डेटा से अगेन कैश। दैट इज कैश से हम लोग परचेज करेंगे, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल के बाद WIP फिनिश गुड, उसको हम लोग स्टॉक करेंगे, एंड फिर उसके बाद जो स्टोर में हम रखेंगे, स्टॉक जो हमारा स्टॉक रहेगा वो हम लोग सेल आउट करेंगे डेटर्स को, और डेटर्स हमें कैश जनरेट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट फिनेंशियल कंसर्न। फिनेंशियल कंसर्न अगर बिजनेस है आपका तो ऑपरेटिंग साइकिल क्या होगा, 3 पार्ट में डिवाइड होगा। ठीक है, यहाँ पे कैश आएगा, डेटर्स आएगा, and again cash आएगा, stock is not there because it is a financial concern. Thank you so much. In my next video we're going to start with the types of working capital, which is most important from the exam point of view. So thank you so much for listening to me patiently, and thank you. Stop sharing.